Hello guys, myself Madhuri. Welcome back to our YouTube video tutorial channel of Edify India. Before starting with our today's lecture, please do subscribe our YouTube channel and also follow us on WhatsApp Telegram groups for free PDF notes, videos, doubt sessions and quizzes. So let's start. Today's the topic of our discussion is metals and non-metals. In that this is a part 3. In that we will see the how do metals and the non-metals react. मतलब metals और non-metals कैसे react करते हैं. In our previous activity you saw the reactions of the metals with the number of reagents. Why do metals react in this manner? Let us recall what we learned about the electronic configuration of the elements in the class 9th. We learned the noble gases, you know that, which have completely filled with valence shells, shows the little chemical activity. We therefore explain the reactivity of elements as a tendency to attain the completely filled valence shell. Let's have a look electronic configuration of the noble gases and some metals and non-metals. We can see this table. That the sodium atom has a 1 electron. Sodium atom has a 1 electron. Okay, in its outermost shell. If it loses the electron its M shell, then its L shell now becomes the outermost shell, and that has to stable octet. और बाद में वो क्या होगा, स्टेबल ऑक्टेट होगा. ये जो सोडियम का अगर ये हमने लॉस हो गया इलेक्ट्रॉन तो हमारा ये स्टेबल ऑक्टेट बनाएगा. द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम हैज स्टिल 11, बट उसके न्यूक्लियस के सोडियम के न्यूक्लियस के एटम स्टिल वो क्या होंगे, प्रोटॉन्स के वो होंगे 11 होंगे, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज बिकम 10 और नंबर ऑफ पर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 ही रहेंगे. सो देयर इज द नेट पॉजिटिव चार्ज गिविंग अस सोडियम कटायन Na+. On the other hand, chlorine has 7 electrons in the outermost shell, and it requires one more electron to complete its octet. If the sodium chlorine were to react, the electron lost by the sodium and could be taken by chlorine. After the gaining the electrons, the chlorine atom gets a unit negative charge. Okay. इसके लिए देखो ये जो हमारा सोडियम है इसमें क्या है 248, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. अगर ये लॉस हो गया तो ऑक्टेट बनाता है सोडियम का टाइम, और वो ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्लोरीन में क्या है 287, तो इसको क्या है 1 की ज़रूरत है फॉर ऑक्टेट, पूरे ऑक्टेट बनाने के लिए. ओके, तो ये जो सोडियम का जो एक्स्ट्रा या इलेक्ट्रॉन था वो हमने क्लोरीन को दे दिया. लॉस सोडियम ने लॉस कर दिया और क्लोरीन ने गेन कर दिया, तो क्या बनाते हैं NaCl सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड. आफ्टर द गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट्स यूनिट नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज 7 प्रोटॉन्स एंड देयर आर द 18 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स KLM shells. दिस गिव्स द क्लोरीन आयन. So both of these elements can give and take a relation between them. And sodium and chloride ions being oppositely charged attract each other and held the strong electrostatic force of attraction to exist at the sodium chloride. It should be noted that the sodium chloride does not exist as a molecule but aggregates of the positively charged ion. Let us see the formation of the one more ionic compound, magnesium chloride. ये यहाँ पे भी देखो सेम वैसे ही है. मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है फॉर ऑक्टेट बनाने के लिए, इसलिए Mg+2. और क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन लेस है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका जो क्लोरीन मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन है वो हम क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन में को डाल देंगे, इसलिए हमारा MgCl2 फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड. ऐसे रिएक्शंस होती है जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर होते हैं और उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है. द कंपाउंड्स फॉर्म इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल्स टू नॉन मेटल्स आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड.
इसको क्या बोलेंगे हम, आयनिक कंपाउंड। ओके, कैन यू नेम द कटायन एंड अनायन प्रेजेंट इन MgCl2? क्या हम नेम दे सकते हैं? तो हाँ, यस। इसलिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड देखेंगे। टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटीज। टेक अ सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड or any other salts from the science laboratory. What it is the physical state of these salts? Take a small amount of the sample on metal spatula and hit directly on the flame. ये देखो फिगर में दिया है कि स्पैचुला में हम सैंपल लेंगे और डायरेक्टली बर्न करेंगे। Repeat with the other samples. What did you observe? Did you samples impart any color to flame? डू दिस कंपाउंड मेल्ट हो रहा है या कौन सी फ्लेम दिखाई दे रहा है, कलर चेंज दिखाई दे रहा है। ट्राई टू डिजॉल्व द सैंपल इन वाटर, बाद में उसको सैंपल को हम वाटर, पेट्रोल या केरोसिन में डिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। आर दे सॉल्युबल है। मेक अ सर्किट शोन इन द फिगर, in this figure and insert the electrons into the solution of one salt. What did you observe? The test the into sodium, test the other salt sample too in this manner. What is your interference about nature of this compound? देखो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बीकर लेंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डिप किए हुए हैं ग्रेफाइट रॉड के और उसमें बैटरी और बल्ब अटैच किया हुआ है, इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो ये क्या है, टेस्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें हम क्या देखेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन में बल्ब ब्लो हो रहा है कि नहीं, कुछ कंपाउंड ऐसे कंपाउंड से कि इंटरफेयर कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कि हमने NaCl लिया तो हमारा बल्ब क्या होना, ग्लो होने लगेगा। वैसे LiCl, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड लेंगे तो वैसे बल्ब हो जाते हैं। और अगर हमने NaCl लिया, हम बर्न किया उसमें, इसमें बर्न किया तो क्या होगा कि NaCl हमारा जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या होगा, बर्न होने लगेगा। बर्न होने के बाद क्या होगा, उसमें उसका जो मेल्ट है वो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने के कारण वो जल्दी मेल्ट नहीं होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। वैसे अगर हम लिथियम क्लोराइड लेंगे तो वो क्या होगा कि जल्दी से मेल्ट होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। ओके, यू हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये हमारे जनरल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि फर्स्ट है हमारा फिजिकल नेचर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसमें फर्स्ट है फिजिकल नेचर। आयनिक कंपाउंड्स आर द सॉलिड and are the somewhat the hard because the strong force of attraction between the positive and negative ions. These compounds are generally brittle and breaks into the piece when the pressure is applied. जैसे कि फिजिकल नेचर में क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड के होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो हार्ड होते हैं। क्यों होते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, एंड वो कंपाउंड जनरली चमकीले होते हैं और इजीली ब्रेक हो जाते हैं व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज बिकॉज द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन। क्यों मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है आयनिक के? क्योंकि उनके जो उनके बीच में इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, वो ब्रेक होने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोल्युबिलिटी। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जनरली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट जो कंपाउंड होते हैं जनरली वाटर सोल्यूबल होते हैं, और इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल। और इनसोल्यूबल किस में होते हैं? केरोसिन और पेट्रोल में। फोर्थ प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स the movement of the charged particles. A solution of an ionic compounds in water contains ions which move to the opposite electrodes when the electricity is passed through the solution. Ionic compound in the solid state do not conduct the electricity because the movement of ions solid not possible to due to rigid structure.
but the ionic compound conduct the electricity is in molten state. This is possible in the molten state since the electrostatic force of attraction between the oppositely charged of ion are overcome due to the heat. Thus the ions move freely and conduct the electricity. Next है हमारा occurrence of metal. The earth crust is the major source of metal. Sea water also contains the some soluble salts such as the sodium chloride, magnesium chloride. अर्थ क्रस्ट पे ज़्यादा हमें मेटल मिलते हैं. सी वाटर में हमें soluble salts मिलते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड. The elements or compounds which occurs naturally in the earth crust are known as a mineral. जो हमें नेचुरल में मिल जाते हैं एलिमेंट्स उसको मिनरल्स बोलते हैं. At the some places the minerals contains a very high percentage of the particular metals and metal can be profitably extracted from it. These minerals are ores. मतलब at some कुछ places पे metals contains a high percentage of particular metal. मतलब metals के percentage ज़्यादा होते हैं. And the metals can be profitably extracted. मतलब profitable कब होता है? extraction करने के बाद. उस minerals को क्या बोलते हैं? ores. Extraction of metal. You have learned about the reactivity of series of metal. Having this knowledge, you can easily understand how the metal is extracted from its ore. Some metals are found in earth crust in the free state. Some are found in their compound. The metals at the bottom of the activity series are the least reactive. They are often found in the free state. For example, gold, silver, platinum, copper are found in the free state. कॉपर देखो यहाँ पे कॉपर और गोल्ड सिल्वर जो है वो फ्री स्टेट में मिल जाते हैं. कॉपर एंड सिल्वर आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज सल्फाइड और ऑक्साइड ओरेज. The metals are at the top of the activity series. So sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminum are so reactive that they never found in nature as a free elements. The metals in the middle of this activity series, that is a zinc, iron, lead, copper etc. are moderately reactive. They are found in the earth's crust mainly as oxides, sulfides, carbonates. You will find that the ores are metals. The ores of many metals are oxide. This is because the oxygen is very reactive elements and is very abundant on the earth. Thus, on the basis of reactivity, we can group the metals into the three following categories: metal of low reactivity, metals of medium reactivity, metals of high reactivity. ऐसे हम थ्री कैटेगरी में उनको डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन द मेटल फेलिंग इन ईच कैटेगरी. द सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड in the extraction of the pure metals from ore. Summary of these steps is given in this figure. Each steps explain in detail following sections. इसमें देखो कौन सा ओरे का जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओरे उसको हम थ्री कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. हाई मेटल जैसे कि हमने देखा मेटल्स ऑफ द हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी. अगर मीडियम्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी है जैसे कि हाई रिएक्टिविटी वाला कौन सा है ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एलियम. इसको कौन सी टेक्निक से करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओरे एंड वी गेट द प्योर मेटल्स. अगर मीडियम है रिएक्टिविटी तो कार्बोनेट ओरे और सल्फाइड ओरे. कार्बोनेट ओरे रहेंगे तो कैल्सिनेशन टेक्निक करेंगे और सल्फाइड ओरे होगा तो रोस्टिंग प्रोसेस करेंगे और उससे हमें मेटल ऑक्साइड बनेंगे. उसके बाद हमने रिडक्शन ऑफ मेटल करके प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल करेंगे. अगर मेटल्स ऑफ द लो रिएक्टिविटी है, लो रिएक्टिव आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये हमारे लो रिएक्टिविटी मेटल्स हैं. उनको कौन से ट्रीटमेंट है? सल्फाइड ओरे की देंगे. सल्फाइड ओरे करने के बाद रोस्टिंग करेंगे और उसके बाद मेटल और रिफाइनिंग करेंगे. ये हमारे एक्सट्रैक्शंस ये सारे हमारे स्टेप्स है एक्सट्रैक्शन के जो हम एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स फ्रॉम ओरे. ओके, इसमें सभी में प्योर मेटल ओरे से हमें
प्योर मेटल्स का निकालने के लिए जो उनके रिएक्टिविटी के बेसिस के ऊपर हमें डिफरेंट टाइप्स का टेक्निक्स मिलती हैं। उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक परफॉर्म करने के बाद हमें प्योर फॉर्म ऑफ मेटल्स मिलता है। Hey guys, if you like this video then please go to the subscription button and subscribe to our YouTube channel, and also you can follow us on these social platforms on the forms, free PDF notes, videos, doubt session, quizzes, and link for this is given in this description box of this video. Don't forget to like, share, comment and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching this video and stay tuned for the next video on the same topic. Thank you.